Good morning everyone. Today we will discuss change of variable in partial differentiation. I am discussing today change of variables in partial differentiation. Now, what is partial differentiation? That I taught you in my last videos. Okay, in many videos, 2-3 videos I have taken on partial differentiation, where in first video I taught you what is partial differentiation, how can we find partial differentiation. In second video I taught you Euler's theorem in partial differentiation, and in third video I taught you Euler's theorem for second derivatives in partial differentiation. And now in this video I'll teach you what is change of variables in partial differentiation. Now, if u is a function of x and y, there is a function u which has two variables x and y, where x is a function of t and y is also a function of t. Then I can write del u by del t. Now del u by del t means differentiation of u with respect to t, which is partial differentiation. I have given you the symbol here, partial differentiation. Now then what will be the formula? It will become del u by del x into del x upon del t. Why? Because when we are differentiating u, it cannot be differentiated with respect to both the variables simultaneously. So that is why what I'll do, I'll differentiate u first with respect to x and then second time with respect to y, and whatever the derivative will come, I'll add the both derivatives so that I can get the total derivative of u with respect to t. Okay, so that is why I have taken here del u by del x. So what will come into del x upon del t. Why I have to write it in this way? Because u is not given directly in terms of t. u हमें x और y में दिया है, u हमें t में नहीं दिया है सीधे सीधे. और मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में ये पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी कभी कोई फंक्शन जिसको कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या किसी भी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जब तक वो सीधा सीधा उस वेरिएबल में नहीं दिया होता है तब तक हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. हमें हमेशा चेन रूल लगानी पड़ता है. सो दैट इज वाई आई हैव अप्लाइड हियर चेन रूल. सी, I have differentiated u first with respect to x and then I have differentiated x with respect to t. Similarly, I did it same thing with the y variable. Okay. Now, I taught you this also, then when to write del operator and when to write d operator. When we are, suppose there is only one variable x or y. Then if I am differentiating u with respect to x, then it becomes total derivative with respect to x, or it becomes total derivative with respect to y if u is only in x or only in y. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर u सिर्फ x में है या सिर्फ y में है तो हम अगर x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो du बाई डी एक्स लिखेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो du बाई डी वाई लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है इसको हम इस तरह से कुछ हम लिख सकते हैं. यहाँ पर मैं आपको ब्रैकेट में लिख कर दिखाऊंगी. यू कैन बी रिटन एज एफ ऑफ फाई टी कॉमा साई टी. So finally, if you see u is in terms of t, I can do that also. So what does it mean? I can write del u by del t as a total derivative of u with respect to t, because if I say in other words, then u is given in terms of t only. Okay. So that is why here I have used total derivative. Now u cannot be differentiated only with respect to x as a total derivative. So that is why I have taken here partial, because here there are given two variables x and y. So that is why I have written here del u by del x. Now once again, this del x upon del t will become dx upon dt. क्यों? क्योंकि फिर से x दो में नहीं दिया है, सिर्फ एक और एक वेरिएबल t में दिया हुआ है. इसलिए जहाँ जहाँ सिर्फ एक वेरिएबल दिया होगा
वहाँ वहाँ टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा, और जहाँ जहाँ एक से अधिक वेरिएबल्स दिए होंगे वहाँ वहाँ ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है। नाउ सेकेंड केस, दिस वाज केस 1. Case 1. Now case 2. What is case 2? Now case 2 says if u is a function of x and y, okay, where x is a function of t1 t2 and y is a function of t1 t2. x भी t1 t2 का फंक्शन है और y भी t1 t2 का फंक्शन है। तो अब मैं ये नहीं लिख सकती हूँ डेल यू बाई डेल टी, अब मैं नहीं लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अब मुझे लिखना पड़ेगा डेल यू बाई डेल t1। ठीक है। डेल यू बाई डेल टी को मैंने डी यू बाई डी टी कर दिया था क्योंकि u केवल t में दिया था। अभी हमारे पास जो u है वो केवल t में नहीं दिया है, u हमारा t1 t2 में दिया है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल होता तो हम टोटल डेरिवेटिव लगाते, लेकिन चूंकि हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं इसलिए हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। सो डेल यू अपॉन डेल टी1 क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन, अब देखो u को हम t1 के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि u तो हमें x और y में दिया है, इसलिए हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी1। ठीक है। अब u के पास केवल x नहीं है, केवल x होता तो यहीं खत्म हो जाता, उसके पास y भी है, इसलिए प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल t1. Now this is the differentiation of u with respect to t1. Okay. Now again we have to calculate it. So now this way I got del u upon del t1. एक बार मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए u जो पहला केस है उसमें एक्स वाई में दिया है और एक्स वाई टी में दिए हैं, तो फाइनली क्या निकल कर आता है कि u जो है हमारा वो t में दिया है। अगर मैं u का डिफरेंशिएशन निकालूंगी t के रिस्पेक्ट में, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव अगर यूज भी करती हूँ तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि u जो दिया है केवल एक वेरिएबल में दिया है तो वो अपने आप टोटल डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है। अब जब हम टोटल डेरिवेटिव, मान लो हमें u का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन निकालना भी है, तो भी हम u को t के रिस्पेक्ट में केवल और केवल डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें u केवल t में दिया ही नहीं है। हमें u किस में दिया है? x में दिया है और y में दिया, दो वेरिएबल्स में दिया है। यानी अगर हम u का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहते हैं तो x भी t में दिया और y भी t में दिया, इसका मतलब हमें x भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और y भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने चेन रूल लगा दिया, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। तो हमें मिल गया डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। अब आते हैं केस 2 पे। जब हम केस 2 पर आते हैं तो हमें दिया हुआ है u फंक्शन है x और y का। अब अगर u फंक्शन है x और y का, तो x जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है t1 और t2 का फंक्शन, और y जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है फिर से t1 और t2 का फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि u इज अ फंक्शन ऑफ t1 एंड t2। अब u केवल एक्स वाई का फंक्शन है। अगर सीधे सीधे देखो एक्स वाई की वहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आएगा phi1 t1 t2, और y की वैल्यू पुट करें तो आएगा phi2 t1 t2। इसका मतलब u किस में दिया है? t1 और t2 में दिया है। अब अगर u t1 और t2 में दिया है तो हम u को t1 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और u को t2 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम u को t1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वही बात है, t1 सीधे सीधे नहीं दिया है, u इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ t1, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y और x y t1 t2 को, इसलिए हमें u को चेन रूल से ही हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो हम u को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा देंगे, x को t1 के रिस्पेक्ट में और फिर u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को t1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली I can find del u by del t2. Okay.
I can find del u by del t2, which is equal to del u by del x into del x upon del t2 plus del u by del y into del y अपॉन del 2 जैसे यहाँ पे आया वैसे ही ये यहाँ पे आ गया. ठीक है. सो दिस वॉज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल. अगर जो हमें दिया है उसमें हमें डायरेक्ट ना करके किसी तीसरे में करना है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल इन पार्शियल डिफरेंशिएशन. नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन. ठीक है, एंड सॉल्व इट. आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन. And the question says, if z is equal to e to the power u fv, okay, and u is equal to ax plus by, v is equal to ax minus by, then they are saying show that is what? b del z upon del x plus a del z upon del y is equal to 2abz. ठीक है. Now solution. When I'll solve it, I'll take this LHS. I'll start with LHS. Okay. LHS में हमें ये दिया है और ये दिया है. इसका मतलब I have to find the differentiation of z with respect to x. ठीक है. अब z किस में दिया है? u और v में. इसका मतलब z का x के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता है. z का किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है? u के रिस्पेक्ट में. और z का हो सकता है v के रिस्पेक्ट में. तो पार्शियल डेरिवेटिव भी ही हो सकता है. क्यों? क्योंकि z uv में दिया है और u xy में दिया है. ऐसा नहीं है कि u भी केवल x में दिया हो तो टोटल डेरिवेटिव नहीं, वहां पे भी x और y दो है. तो फाइनली अगर देखा जाए तो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. तो इसीलिए हम z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कीपिंग y एज ए कांस्टेंट. ठीक है. अब y को कांस्टेंट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि z सीधा सीधा तो x में दिया ही नहीं हुआ है. z किस में दिया है? u में. इसलिए del z अपॉन del u इंटू del u अपॉन del x प्लस del z अपॉन del v इंटू del v अपॉन del x. ठीक है. नाउ आई विल राइट दिस वैल्यू. del z अपॉन del u कितना होगा? इनका डिफरेंशिएशन. e टू द पावर u का डिफरेंशिएशन और fv विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, सो इट विल रिमेन एज इट इज. it will remain as it is. So e to the power u का डिफरेंशिएशन e to the power u और fu रह जाएगा, fv रह जाएगा ऐसे का ऐसा. और del u अपॉन del x का डिफरेंशिएशन यहाँ से देखो, हम सिर्फ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा? a इंटू 1 प्लस 0 प्लस नाउ del z अपॉन del v. So e to the power u will remain as it is because u will be treated as a constant. And f dash v will become f dash v into, अब now del v upon del x will be a into 1 minus 0. What I'll get? I'll get del z upon del x is equal to e to the power u fv into a plus a into e to the power u f dash v. Now this is equation number 1. Okay. If I, okay, now what I have to calculate? I have to calculate del z upon del y. Let us see how will we find this value. Del z upon del v, del z upon del y. Okay, again the same concept will be applicable. Del z upon del u into del u upon del y, क्योंकि z u और v में दिया है. del z अपॉन del v इंटू del v अपॉन del y. ठीक है. नाउ del z अपॉन del u कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर u will be e to the power u. fv will remain constant and del v upon del y will be
0 माइनस बी इंटू 1. y का डिफरेंशिएशन 1 और x का डिफरेंशिएशन 0. आई एम सॉरी, आई हैव टू डिफरेंशिएट u. v को मैं नहीं कर सकती, यहाँ u को करना है, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस b इंटू 1 प्लस नाउ डेल z अपॉन डेल v. अब हमें f डैश v का करना है, तो e टू दी पावर u विल रिमेन एज इट इज. एफ वी का हो गया एफ डैश यू और डेल वी अपॉन डेल एक्स का हो गया 0 माइनस बी इंटू 1. ठीक है. नाउ आई डू नॉट नीड दिस क्वेश्चन एनी मोर बिकॉज I have solved many things in this question already. So what I'll get? See, I'll get e to the power b e to the power u into fv into b minus b into e to the power u into f dash b. This is equation number 2. Okay. Multiply by b in equation number 1. I'm writing. Multiply by b in equation 1 and multiply by a in equation 2 and on adding. दोनों में पहली इक्वेशन में हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी इक्वेशन में हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखिए हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा. पहली इक्वेशन में जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा a डेल z अपॉन डेल एक्स, और दूसरी इक्वेशन में जब b से मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी, इसमें b से और इसमें a से, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा. हमें मिलेगा ए बी ई टू दी पावर यू एफ वी प्लस ए बी ई टू दी पावर यू एफ डैश वी. यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस ए बी ई टू दी पावर यू एफ वी, और यहाँ मिलेगा माइनस ए बी ई टू दी पावर यू एफ डैश वी. नाउ दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट. व्हाट आई गॉट 2ab e to the power u f v. What is this? This is nothing but z, hence it is equal to 2ab z. Hence proved. Okay, now this is the answer. This is hence proved. All right. So I hope this is very much clear to you. So let us take one more question and try to again understand one more, different type of question in change of variables. Okay. Let us take the question. Now the question is if u is equal to f y minus z, z minus x minus y. Okay, they are saying prove that del u upon del x plus del u upon del y plus del u upon del z is equal to 0. Okay, now I have to get the solution of this question. ठीक है. अब देखिए u जो हमें दिया है, क्या ये सिर्फ y में है या सिर्फ x में है या सिर्फ z में है? नहीं है. अगर ये ओनली x होता यहाँ पर, then here it we can say x. अभी y माइनस z क्या है? y माइनस z अगर हमें लिखते हैं ना, इसका मतलब खुद ही होता है कि ये खुद एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसमें हम y में से z को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है ना. सिमिलरली z माइनस एक्स क्या है? वो अकेला y या अकेला x या अकेला z नहीं है. तो इसका मतलब ये एक अपने आप में फंक्शन है जिसमें हम z को x में से माइनस कर देते हैं.
सिमिलरली अगर हम x माइनस वाई लिखते हैं तो ना तो ये x है ना ये y है और ना ही ये z है। ये है क्या एक्चुअली? ये वो है, यानी कि ये एक फंक्शन है जिसमें हम x को y में से डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेट y minus z is r. R is a function of y and z. Z minus x is equal to s. So s is a function of z minus x and x minus y is equal to t. Hence t is a function of x minus y. So this is r, this is s and this is t. Okay. Now what I can write? ध्यान से देखिएगा. U is a function of RST. Okay. Now RST is a function of x, y and z. This, what does it mean? This means U is a function of x, y and z. इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्टली u x y और z का एक फंक्शन हो गया. अब अगर u x y z का एक फंक्शन हो गया तो हम u को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो देन आई कैन राइट del u upon del x is equal to del u upon, this is a u is a function of r. तो फिर से वही बात, सीधे सीधे x के रिस्पेक्ट में नहीं किया जा सकता है. आई हैव टू अप्लाई चेन रूल. del r इंटू del r अपॉन del x प्लस, अब अगर सिर्फ इतना कर देती तो सिर्फ r के पूरे का नहीं होता, हमें तो x के रिस्पेक्ट में पूरे u का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हमें r s t तीनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. So this is del s upon del x plus del u by del t into del t upon del x. ठीक है, when I'll take this I can write del u upon del r as it is into del r upon del x. If I differentiate this r with respect to x, my friends, see, is there x available? No, there is no x. Hence y and z, because this is the partial differentiation of r with respect to x. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम r को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें y और z को कांस्टेंट लेना पड़ेगा. अब r में तो हैं ही सिर्फ y और z, तो पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया. किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में. जब वो कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है? 0 प्लस del u by del s into now del s upon del x. तो देखिए जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो z का डिफरेंशिएशन 0 और x का हो जाएगा 1 प्लस del u by del t into del t upon del x, तो 1 माइनस 0. ओके, तो अब हमें ये मिल गया. इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस del u by del s प्लस del u बाई del t. ये किसकी वैल्यू है? ये है वैल्यू del u बाई del x की. ठीक है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. ना अब हम निकालेंगे del u बाई del y. जब हम del u बाई del y निकालेंगे तो क्या होगा? del u बाई del r इंटू del r अपॉन del y प्लस del u बाई del s इंटू del s अपॉन del y प्लस del u बाई del t इंटू del t अपॉन del y. ठीक है, नाउ del u अपॉन del r विल रिमेन एज इट इज इंटू del r अपॉन del y. del r अपॉन del y क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया? 1 माइनस 0 प्लस del u अपॉन del s. हमें u तो दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए हम उसे ऐसे का ऐसे रखेंगे. ठीक है, और s हमें लेकिन दिया है विद रिस्पेक्ट टू y. दिया है? हाँ दिया, उसमें y है ही नहीं, तो वैल्यू कितनी हो गई? 0 प्लस del u बाई del t इंटू del t अपॉन del y कितना हो गया? 0 माइनस 1. When I'll solve it, what I'll get? Take a screenshot so that I can proceed.
Now see what I'll get. I'll get del u upon del y is equal to del u upon del r, and I will get minus del u by del t. ठीक है. So this is इक्वेशन नंबर 2. अब क्या बचा? अब ये वाला बचा. मैंने del u अपॉन del x निकाल लिया, del u अपॉन del y निकाल लिया. अब हमारे पास बचा del u बाई del z, और इन दोनों को ऐड करने पर 0 होना चाहिए. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ del u अपॉन del z. So now del u upon del z. What I'll get? Del u upon del r into del r upon del z plus del u upon del s into del s upon del z plus del u upon del t into del t upon del z. ठीक है. अब हमें क्या मिलेगा? del u upon del r will remain as it is, and what I'll get? del r upon del z. r हमें कितना दिया है? r हमें यहाँ पे दिया हुआ था. देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ. r दिया है हमें y माइनस z, s दिया है हमें z माइनस x, और t दिया है हमें x माइनस y. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब del u बाई del r क्या है? अब हमें निकालना है del r अपॉन del z. तो कितनी वैल्यू आएगी? 0 माइनस 1 प्लस del u अपॉन del s इंटू del s अपॉन del z क्या होगा? 1 माइनस 0 और प्लस del u बाई del t इंटू, अब इसमें है ही नहीं z तो 0 हो गया. ठीक है. हमें क्या मिला? del u अपॉन del z इज इक्वल टू माइनस del u बाई del r प्लस del u बाई del s. इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. ऑन adding equation 1, 2 and 3. Let us add. On adding equation 1, 2 and 3, we get, what do we get? Del u upon del x plus del u upon del y प्लस del u अपॉन del z इज इक्वल टू, इसमें क्या है? माइनस del u अपॉन del s प्लस del u अपॉन del t. इसमें क्या है? del u अपॉन del r माइनस del u अपॉन del t. और इसमें क्या है? इसमें है हमारे पास माइनस del u अपॉन del r प्लस del u अपॉन del s. देखिए r से r कट गया, t से t कट गया, s से s कट गया, इज इक्वल टू 0. आंसर. ठीक है ना. तो आपने देखा कि सारी वैल्यूज एक दूसरे के से कैंसिल हो गई. हेंस वी गेट अ वैल्यू इक्वल टू 0. सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we will get del u by del x plus del u by del y plus del u by del z is equal to 0. Okay. So I hope you understood the concept very well. Okay. I think for today this much is enough. You take some questions from your book, whichever you are referring, or you can, if you say, you can comment on so that I can give you some questions based on change of variable in partial differentiation. Or if you find any other problem from any other book in change of variable in partial differentiation, you can write a comment. I will solve the problem and make a video and show it to you how to solve the given question. Okay, try this. Try and work hard. Definitely you all will get success. You all will get very, very good marks in mathematics. Okay, till then, goodbye. Bye.